बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form, when such an examination is conducted with a view of expressing an opinion thereon. Right? So what do we do? It's an independent examination of what? Financial information of whom? An entity. Which entity? It could be profit oriented or not. It could be a small entity like Paytm, or it could be a big entity, a large entity like Reliance, right? Or it can be in any form, any legal form. It could be a partnership, it could be a sole proprietorship, it could be a company, it could be an HUF, any legal form, right? With when such an examination is conducted with a view of expressing an opinion, मतलब कि एक independent examination financial information का, एक entity का जिसपे हमें opinion देना है, उसको बोलते हैं audit, right? Financial information, historical financial information दोनों एक ही चीज है। क्या होती है historical financial information? Information expressed in financial terms in relation to a particular entity, right? It is derived primarily from the entity's accounting system about the economic events occurring in the past time period or occurred in the past time period, or economic conditions or circumstances at point in times in past. ठीक है? अब financial statements क्या होते हैं? A structured representation of historical financial information including related notes which intend to communicate an entity's economic resources or obligations at a point in time, or the changes therein for a period of time in accordance with the applicable FRF. FRF मतलब Financial Reporting Framework. ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है? एप्लीकेबल एफआरएफ मतलब वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि अडॉप्ट किए मैनेजमेंट ने एंड टीसीडब्ल्यूजी ने इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो अडॉप्ट किए वो एक्सेप्टेबल हैं in the view of the nature and objective of the entity and the financial statements, और दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। मतलब कि जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको फॉलो करना है एफआरएफ, और जो आपने अडॉप्ट किया है वो दोनों अगर सेम है तो उस केस में उसको बोलते हैं एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है? उसके बाद नॉर्मली जनरल एफआरएफ क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड. It is a set of criteria which is used to determine the measurement, recognition, presentation and disclosure of all the material items appearing in the financial statement. ठीक है? Next, what is an overall objective of an auditor? Very important question. In conducting an audit of financial statement, the overall objective of auditor is to bring reasonable assurance. किस चीज के लिए reasonable assurance चाहिए? Whether the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error. Right? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर मैं रिलायंस को ऑडिट करने जा रहा हूं तो ये चीज का रीजनेबल अश्योरेंस देना है मुझे कि जो उसकी मटेरियल उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। रीजनेबल अश्योरेंस देना है, राइट? नॉट एब्सोल्यूट, कि कोई फ्रॉड या एरर नहीं दिखाई दे रहा है उन स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF, right? So ये एग्जामिनेशन करने के बाद ही, ये रीजनेबल अश्योरेंस खुद ऑब्टेन करने के बाद ही मैं ओपिनियन दूंगा रिलायंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इन कि वो इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डेंस में है। ठीक है? और उसके बाद में आई विल रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। ठीक है?
So what is the overall objective? To obtain reasonable assurance about the financial statement that they are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and thereby enabling the auditor to obtain an opinion whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF, and to report on the financial statement and communicate as required by the standards on auditing in accordance with the auditor's finding. ठीक है, इसके बाद what is reasonable assurance? Reasonable assurance means a high but not absolute level of assurance. For auditor's opinion, a true or false? For auditor's opinion, reasonable assurance is an absolute level of assurance. True or false? It is false because an auditor can give only a reasonable assurance. What is the meaning of misstatement? Misstatement means कि चार चीजों से रिलेटेड मिसस्टेटमेंट हो सकता है. पहले तो क्या क्या चीजें? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर. इन चीजों से रिलेटेड आपने जो रिपोर्ट किया और आपको कैसे करना चाहिए था रिपोर्ट, अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तराजू जो है एक तरफ ऊपर है एक तरफ नीचे है, डिफरेंस है, तो उस केस में वो जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं मिसस्टेटमेंट. अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन and disclosure of a reported financial statement item and the amount, classification, presentation and disclosure that is required for an item to be in accordance with the applicable FRF. ठीक है, ये जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं मिसस्टेटमेंट. मिसस्टेटमेंट जो है वो फ्रॉड और एरर में से निकल सकता है. अब फ्रॉड और एरर दो अलग अलग वर्ड क्यों लिखे, सिर्फ फ्रॉड लिखने से क्यों नहीं चला? बिकॉज देयर इज अ वेरी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन फ्रॉड एंड एरर, that whether the underlying action that result in the misstatement is intentional or unintentional, right? Fraud deals with intentional misrepresentation, but error on the other hand deals with unintentional mistakes that could have happened while forming the financial statements, right? Now, which will be more harder to detect? Fraud, obviously fraud, because why fraud will be hard to detect? Because it is very sophisticated and carefully organized scheme to conceal it, right? Such as forgery or deliberate failure to record transaction, intentional misrepresentation to the auditor, right? So all these things, because of these things, fraud is more harder to detect. ठीक है, इसके बाद next, मटीरियल मतलब क्या होता है? वी आर सेइंग मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. मिसस्टेटमेंट का मतलब, material मतलब misstatements including omissions are considered to be material if they individually or in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements. ठीक है, ऐसी चीजें जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती है इकोनॉमिक डिसीजंस को, जो कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेंगे, तो उस केस में वैसी इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन. और अगर उन मटेरियल इंफॉर्मेशन में कोई डिफेक्ट है, कोई मिसस्टेटमेंट है, तो उसको बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ ओपिनियन. ओपिनियन जो है वो मेनली दो टाइप का हो सकता है, क्लीन ओपिनियन या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन. ठीक है, क्लीन ओपिनियन मतलब क्या होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई खोट नहीं है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, एंड आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी आइटम ऐसा नहीं है मटेरियल मिसस्टेटमेंट कि उससे पर्सुएसिव बने स्टेटमेंट. ठीक है, ये होता है क्लीन ओपिनियन ऑडिटर का. अब होता है मॉडिफाइड ओपिनियन. मॉडिफाइड ओपिनियन जो होता है वो तीन टाइप का हो सकता है, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो है मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन जो है मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो पर्सुएसिव नहीं है. मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है लेकिन वो पर्सुएसिव नहीं है. पर्सुएसिव मतलब कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट नहीं करता है, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में इफेक्ट नहीं करता है, राइट? मतलब वो इतना मटेरियल नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन वो इतना पर्सुएसिव नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करे. ठीक है, या फिर हो सकता है एडवर्स ओपिनियन. एडवर्स ओपिनियन मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी है और उसके कारण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी बहुत ज्यादा पर्सुएसिव बनती है, राइट? सो उस केस में हम देते हैं एडवर्स ओपिनियन. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम बाद में डिस्कस करेंगे.
इसके बाद नेक्स्ट पर्सुएसिव का मीनिंग, पर्सुएसिव मतलब इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी देख लेते हैं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देते हैं, जब ऑडिटर जो है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली ऑडिट नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से हो सकता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो और कोई ऐसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जो कि पर्सुएसिव हो, तो उस केस में जो है वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है, ठीक है। इसके बाद पर्सुएसिव का मीनिंग मैंने बता दिया। अब पर्सुएसिव का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे आइटम होंगे तो ही पर्सुएसिव होगा, एक आइटम भी पर्सुएसिव हो सकता है। सपोज इन्वेंट्री है, अब इन्वेंट्री 5 करोड़ की है, बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं हम अभी, लेकिन वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो 5 लाख की होनी चाहिए। सो इट इज वेरी पर्सुएसिव एंड इट इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। अब हो सकता है कि डेटर्स 5 करोड़ के थे, 5 करोड़ के थे, लेकिन हमने 5.5 करोड़ के दिखा रखे हैं। हो सकता है हमने स्टॉक भी साथ साथ में 5 लाख का था, 4 लाख का दिखा रखा है। तो ऐसे बहुत सारे आइटम मिला के भी पर्सुएसिव हो सकता है, या फिर सिंगल आइटम भी पर्सुएसिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोपोर्शन। सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन अगर है तो पर्सुएसिव हो सकता है वो, ठीक है। इसके बाद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज TCWG। MCQ के फॉर्म में आ सकता है, द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर overseeing the strategic direction of the entity and obligations related to the entity, ठीक है। दो चीजों की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, पहला ओवरसी करना स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को एंटिटी की, एंड ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू द एंटिटी, ठीक है। इन दो चीजों को ध्यान में रखना है। तो फिर मैनेजमेंट क्या काम करती है, मैनेजमेंट आर द person with executive responsibility for conduct of entities operation, ठीक है। इसके बाद what are the preconditions for an audit, preconditions क्या क्या है, दो चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है ऑडिटर को कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट लेने के पहले। क्या चीज, पहला कि जो एप्लीकेबल FRF है वो हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा FRF एप्लीकेबल होने वाला है इस एंटिटी के ऊपर जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूं। दूसरा चीज कि मैनेजमेंट जो है उसके साथ मैंने एग्रीमेंट किया है कि मैनेजमेंट मानती है जानती है, मानती है मतलब एक्नॉलेज करती है, जानती है मतलब अंडरस्टैंड्स कि भैया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीज से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। दूसरा इंटरनल कंट्रोल मैनेज करने की, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज नेसेसरी एंड उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी जो है वो मैनेजमेंट की है, ये मैनेजमेंट मानती है जानती है। एंड ऑडिटर को इंफॉर्मेशन देना, एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन which is relevant for the auditor and additional information which the auditor may request to the management, and unrestricted access to an person of an entity only from whom the auditor can seek information whenever he needs some information from the company, ठीक है। सो उसको कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक ऐसे पर्सन को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दो कि हाँ भाई ऑडिटर कभी भी जाके उस बंदे से इन्फॉर्मेशन मांग सके, ठीक है। तो ये सब चीजें करेंगे तो ही आप जो है ऑडिट लेना, ठीक है। अब इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल मतलब द प्रोसेस डिजाइंड implemented and maintained, क्या बोला, डिजाइंड implemented and maintained, किसके द्वारा, TCWG मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, TCWG मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, ठीक है। टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets and compliance with the applicable law and regulations, ठीक है। रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज से रिलेटेड देना कि भैया मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो प्रॉपर है, रिलायबल है, मेरे जो ऑपरेशंस है एंटिटी के वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, मैं अपने एसेट्स को प्रॉपरली सेफगार्ड कर रहा हूं, एंड जो एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशंस है मैं उनसे कंप्लायंस करता हूं। इन सब चीजों से रिलेटेड रीजनेबल अश्योरेंस पाने के लिए जो एंटिटी है वो यूज करती है, डिजाइन करती है, इंप्लीमेंट करती है और मेंटेन करती है इंटरनल कंट्रोल्स को, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें इंटरनल कंट्रोल्स का तो हम लोग ले सकते हैं
बेसिक एग्जांपल अगर एट अ वेरी माइक्रो लेवल ले तो हमारे घर में जो ताले लगे होते हैं दे आर काइंड ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल, राइट। तिजोरी पे अगर ताला है दैट इज एन इंटरनल कंट्रोल टू सेव गार्ड दी एसेट्स, राइट। नाउ कंपनी लेवल पे देखे तो हो सकता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, राइट, सेपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिजिकल कस्टडी ऑफ एन एसेट फ्रॉम द रिलेटेड रिकॉर्ड कीपिंग इज अ क्रिटिकल कंट्रोल। मतलब कि इन्वेंट्री सपोज रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो है वो एक ही पर्सन की निगरानी में रखा हुआ है एंड उसी को हमने जो है वो कब लेके जाएगा, कब करना, सामान देना है और सामान जो है वो भी उसकी निगरानी में रखा है, सब कुछ उसी की निगरानी में रखा हुआ है। तो हो सकता है कि वो बंदा सामान की चोरी कर ले, राइट। सो वो प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल नहीं है। लेकिन ऐसा है कि मैंने एक बंदे के कंपनी में एक बंदे के अंदर जो है रॉ मटेरियल रखा हुआ है, लेकिन जब वो रॉ मटेरियल लेके जाएगा तो वो दूसरे बंदे के साथ रिकॉर्ड करेगा रजिस्टर में कि भैया मैं इतना सामान लेके जा रहा हूँ, तुम रिकॉर्ड कर लेना। दैट इज अ प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल, राइट। ऑथराइजेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। एन एम्प्लॉय हु ओनली नीड्स टू व्यू द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू रीड ओनली and file scan access and should not be granted to write and create access, ठीक है। and there could be many reconciliations like bank reconciliations or such other kind of reconciliations, ठीक है। इसके बाद टेस्ट चेकिंग नाम की चीज होती है। टेस्ट चेकिंग को हम लोग सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जो कि ऑडिटर यूज करता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। मतलब कि पूरी 100% पॉपुलेशन को मैं चेक करूं, इससे अच्छा मैं कुछ सैंपल्स उठा लूं पूरी पॉपुलेशन में से, जिनको चेक करके मुझे ये अश्योरेंस मिल जाए कि ये जो पॉपुलेशन है, ये जिस चीज से रिलेटेड ये पॉपुलेशन है वो सब चीज ठीक है, बराबर है। अगर ये सैंपल सही निकले तो मतलब सब कुछ बराबर है इस चीज का। सैंपल्स कितने उठाऊंगा? लेस देन 100%, ठीक है, बिकॉज सबको ही चेक करना है तो फिर वो सैम्पलिंग नहीं कहलाएगा, राइट। शुड बी डन इन सच अ वे दैट एवरी आइटम मस्ट हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद जजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जजमेंट? हम लोग बोलते हैं ऑडिटर का जजमेंट पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें। व्हाट इज जजमेंट? एप्लीकेशन ऑफ 3 थिंग्स, फर्स्ट ट्रेनिंग, सेकंड एक्सपीरियंस एंड थर्ड नॉलेज। टेक, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ठीक है। इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस about the courses of action that are appropriate in the circumstances of the audit engagement, ठीक है। Professional judgment is very essential to the proper conduct of an audit, ठीक है। इसके बाद next, how audit is conducted? ऑडिट कंडक्ट करने के लिए हमको पहले कुछ चीजों का फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। किन किन चीजों से रिलेटेड फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है? एंगेजमेंट, प्लानिंग, मटीरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स when required by SA or when the auditor has chosen to do so, substantive procedures, audit evidences to be obtained, conclusions and reporting, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड बातें। रिस्क असेसमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमको पता चले कि भैया इस एंटिटी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का कितना रिस्क है, राइट। उसके लिए हम करते हैं रिस्क असेसमेंट। जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट करते हैं वो उसको हम रोमम बोलेंगे, ROMM, रोमम। रोमम जो है वो एग्जिस्ट करता है प्रायर टू ऑडिट, राइट। सो ये जो प्रायर टू ऑडिट एग्जिस्ट करता है, इसको हमको तो असेस करना पड़ेगा ना, तो वो चीज असेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। उसको हम लोग बोलेंगे रैप, RAP, रैप, ठीक है। दे आर यूज्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट including its internal control, in order to assess the risk of material misstatement, ROMM, and determine the nature, extent and timing, NET, nature, extent, timing of FAP. FAP means FAP, further audit procedures, ठीक है। रैप में हम क्या करते हैं? हम एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझते हैं, उससे रिलेटेड एंटिटी को समझते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को समझते हैं कि इंटरनल कंट्रोल कैसे काम करता है, इन ऑर्डर टू असेस द रोमम एंड डिटरमिन द एनिटी ऑफ फैप। मतलब कि बाकी जो मैं आगे प्रोसीजर्स लगाने वाला हूं उनका नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग क्या होगा, उस चीज को डिटरमिन करने के लिए मैं RAP करता हूं, ठीक है। आफ्टर RAP द ऑडिटर कैन असेस द लेवल ऑफ रोमम। रोमम हाई है, रोमम लो है, रोमम मॉडरेट है, वो सब चीजें देखने के लिए।
एक बार ओमोम असेस हो गया, उसके बाद हम देखेंगे कि नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग क्या होने वाला है मेरे फैब का। ठीक है, नेचर मतलब मैं कंप्लायंस प्रोसीजर्स ज्यादा यूज करूंगा या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स यूज करूंगा। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, मेरा सैंपल साइज क्या होगा, या फिर मुझे डेटा से रिलेटेड ज्यादा काम करना है या कम काम करना है, इन्वेंट्री में ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ कम ध्यान देना है। टाइमिंग का मतलब क्या हुआ कि मुझे ऑडिट कब करना है, इंटरिम पीरियड में करना है और वहीं पे कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस पूरे साल भर में बीच बीच में दिखते जाने हैं, या फिर साल के आखिरी में ही सब कुछ चेक करना है एक साथ अच्छे से बैठ के। ठीक है, उसको बोलते हैं टाइमिंग। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अलोन डू नॉट प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट टू सपोर्ट ऑडिट ओपिनियन, दे आर रिक्वायर्ड इन ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स। ठीक है, इसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, फैप। फैप क्या होता है, फैप के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंप्लायंस प्रोसीजर्स। ऑडिटर टेस्ट इंटरनल कंट्रोल इन ऑर्डर टू डिसाइड whether to rely them or not। इंटरनल कंट्रोल सबसे पहले ऑडिटर टेस्ट करता है कि कैसे काम करना है। ऑडिट इंटरनल कंट्रोल पे मुझे रिलाई करना है या नहीं, इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंट है या नहीं, इंटरनल कंट्रोल की डिजाइन अच्छी है या नहीं, वो इंटरनल कंट्रोल को पहले टेस्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद आगे का काम करेगा। ठीक है, एक बार उसने डिटरमिन कर लिया कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है, उसकी लेवल ऑफ एफिशिएंसी देख ली टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी के द्वारा, तो उस केस में बाद में वो डिसाइड करेगा कि एफिशिएंसी अगर अच्छी है तो वो इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करेगा और वो ज्यादा कंप्लायंस प्रोसीजर्स करेगा। कंप्लायंस प्रोसीजर्स मतलब कि वो भैया और ज्यादा इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करेगा कि इंटरनल कंट्रोल पे मैं रिलाई कर रहा हूं तो उसको मैं अच्छे से टेस्ट कर लूं, मैं कम से कम 99-100% तो नहीं हो सकता लेकिन 99% अश्योरेंस पा लूं कि ये इंटरनल कंट्रोल जो है मैं जिस पे रिलाई कर रहा हूँ वो एकदम ठीक है, सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है इंटरनल कंट्रोल में। ठीक है, एंड अब जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स होते हैं वो मैं कम करूंगा, राइट, बिकॉज अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो अकाउंट्स जो होंगे कंपनी के उस पर मैं थोड़ा कम रिलाई कर सकता हूँ, राइट। सब्सटैंटिव प्रोसीजर मतलब ऑडिट विल चेक दी ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, ये 3 असर्शंस चेक करता है ऑडिटर। क्या क्या चीजें, ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये क्या होते हैं, असर्शंस। ठीक है, इन चीजों को कैसे चेक करता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर में, वो लगाता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा, रैप असेस करेगा, रैप से उसको रोमम का लेवल पता चलेगा, रोमम का लेवल पता चलेगा, रोमम का लेवल पता करने के लिए रैप में मुझे क्या करना है, मुझे अंडरस्टैंड करना है एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को, वहां से मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करना है या नहीं करना है। यहां तक ना मुझे यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल को सिर्फ समझना है, राइट। उसके बाद मुझे नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग डिसाइड करना है फैब का। फैब में आके मैं क्या करूंगा, वहां पे इंटरनल कंट्रोल्स को जो है वो टेस्ट करूंगा कि मुझे उन पे रिलाई करना है या नहीं। उसके लिए होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग कंप्लायंस प्रोसीजर बोल रहे हैं इतनी देर से। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर्स भी बोल सकते हैं। उससे वो डिसाइड करेगा कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो एफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स जो है उस पे ध्यान देगा वो कि सब्सटैंटिव अगर एफिशिएंट है इंटरनल कंट्रोल तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम करेगा। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स मतलब कि वो 3 असर्शंस चेक करेगा, क्या क्या, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। असर्शंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब ऑडिटर चेक करेगा अकाउंट कंपनी के, एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी कर सकता है, मतलब कि ऑडिटर जो है ट्रेंड्स, रेशियोज, इन सब के बेसिस पे भी असेस कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, इसके बाद अब असर्शंस पे आते हैं। मैंने बाय मिस्टेकनली अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को असर्शन बोल दिया। दे आर नॉट असर्शंस, दे आर द मेन हेडिंग्स। उसके अंदर असर्शंस आते हैं। पहले अकाउंट बैलेंस की बात करते हैं। अकाउंट बैलेंस के अंदर 4 असर्शंस आते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ERCV। E मतलब एग्जिस्टेंस, R मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, C मतलब कंप्लीटनेस एंड V मतलब वेरिएबिलिटी। ठीक है,
असर्शंस को बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि उनकी जो ब्रॉड 3 कैटेगरीज है असर्शंस को जिसमें बांटा गया वो है अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, अब अकाउंट बैलेंस के अंदर 4 असर्शंस है। एग्जिस्टेंस मतलब कि सपोज हम लोग अकाउंट बैलेंस में बिल्डिंग का एग्जांपल लेके चलते हैं कि बिल्डिंग वो दिखा रहा है अकाउंट बैलेंस उसका 10 लाख रुपीस का। सो सबसे पहले मैं एग्जिस्टेंस चेक करूंगा कि वो बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं। दूसरा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कि उस बिल्डिंग को होल्ड करने का, कंट्रोल करने का राइट जो है वो कंपनी के पास है या नहीं। देन कंप्लीटनेस, वो कंपनी से रिलेटेड कोई एंट्री है, अकाउंट्स में कोई फ्रॉड तो नहीं है, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एंट्री छुपाई तो नहीं गई है, कंप्लीट है ना, कोई छूटा तो नहीं है कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, एंड वैल्यूएशन एंड एलोकेशन मैं चेक करूंगा लास्ट में कि अकाउंट बैलेंस वगैरह जो दिखाए हैं वो अप्रोप्रिएट अमाउंट पे है या अनाप शनाप कुछ भी अमाउंट दिखा दिया। ठीक है, सो 4 असर्शंस ERCV। उसके बाद अब ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या क्या असर्शंस है। पहला, अब पहले इसका निमोनिक बनेगा OCACC। OCACC अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं परचेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अब मैंने वो परचेज की बिल्डिंग, वो इवेंट, वो जो ट्रांजैक्शन वो सही में हुआ है और एंटिटी के रिस्पेक्ट में हुआ है, ये चीज असर्शन अकरेंस इंश्योर करता है। ठीक है, कंप्लीटनेस मतलब वो जो ट्रांजैक्शन हुआ मैंने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब जिस अमाउंट पे खरीदा, जो प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए रिकॉर्ड करने की, वही अमाउंट पे मैंने रिकॉर्ड किया है। कट ऑफ मतलब जिस पीरियड पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, करंट अकाउंटिंग पीरियड, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, उसी में रिकॉर्ड किया। एंड क्लासिफिकेशन मतलब कि जिस अकाउंट को मुझे डेबिट करना चाहिए, जिस अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना चाहिए, उसी प्रॉपर अकाउंट में मैंने एंट्रीज की है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड असर्शंस OCAC। ठीक है, 4 ही है यहाँ पे OCAC। ठीक है, O मतलब occurrence, all the events in the transactions account balance are properly disclosed and presented that occurred during the relevant period। ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में वापस हम लोग वही एग्जांपल ले सकते हैं कि बिल्डिंग परचेज की एंड बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, राइट। सो उसमें पहले मुझे देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग परचेज की हुई है ना असलियत में, और उसके रिलेटेड अकाउंट जो है वो प्रॉपरली दिखाए गए हैं, एंड एक्यूरेसी जो है वो प्रॉपर है, एंड क्लासिफिकेशन जो है प्रॉपर अकाउंट्स का वो मैंने किया है। ठीक है, अब जो असर्शंस होते हैं वो दो कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। एक्सप्लिसिट मतलब कि मुझे उन असर्शंस को स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब कि इम्प्लिसिट कि वो ऑब्वियस ही भाई ऐसा तो होना ही है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बिल्डिंग 50 करोड़ की बैलेंस शीट में दिखा रहा है, तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग है चलो बिल्डिंग है, अब उसकी एग्जिस्टेंस ERCV चेक करना बात अलग है, लेकिन है इतना तो इम्प्लिसिट है। अब अगर बिल्डिंग नहीं दिखा रहा है बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब यही हुआ ना बाय डिफॉल्ट कि भैया बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग के नाम पे या बिल्डिंग के पास कोई कंपनी के पास कोई बिल्डिंग नहीं है, राइट। अब असर्शंस जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा है कि ये ट्रांजैक्शन इस पार्टी के साथ स्पेसिफिकली हुआ था, तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव ट्रांजैक्शन हो गया कि, और ये मैंने स्पेसिफिकली बता दिया कि भैया ये हुआ था। ठीक है, इसके बाद या ऐसा हो सकता है कि मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया हो नेगेटिव असर्शन का एग्जांपल कि देयर इज नो कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ऐसा मैंने नोट्स में लिख दिया हो, राइट। सो दैट इज नेगेटिव असर्शन। ठीक है, ये हो गया हमारे असर्शन के टाइप्स, असर्शन की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, असर्शंस ये हो गया। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं असर्शंस के अपनी अपनी बुक से। उसके बाद हम आते हैं ऑडिट एविडेंस पे। ऑडिट एविडेंस बेसिक मीनिंग समझेंगे, बाद में तो ऐसे है ही। ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर फॉर अराइविंग एट अ कंक्लूजन फॉर गिविंग एन ओपिनियन, राइट। ऑडिट एविडेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। रिस्क जो है वो दो टाइप का हो सकता है, रोमम या फिर डिटेक्शन रिस्क। रोमम के अंदर दो रिस्क आते हैं, इनहेरेंट रिस्क या फिर कंट्रोल रिस्क। ठीक है, इसके बाद
अश्योरेंस का मीनिंग, अश्योरेंस मतलब पहले भी मैंने बता रखा है, अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन इंटेंडेड टू गिव कॉन्फिडेंस, अ प्रॉमिस काइंड ऑफ थिंग, वर्ड ऑफ ऑनर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारा बेसिक्स वाला चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, एंड इफ देयर इज एनी थिंग wrong which I said, then please do let me know in the comment section. If you have any doubt relating to anything that I said, please let me know that too in the comment section.